Hello students, this is the topic in constructions of class 9 exercise 11.2 because the new topic that is introduced that we need to construct a triangle having this when the sum of the sides are given and the difference of the sides are given. So I have taken example for the when the sum of the sides are given, and that I have taken the question number 1 of exercise 11.2 as an example. Yes, so here the question is, construct a triangle ABC in which BC is equal to 7 centimeter, angle B is equal to 75 degree, and AB plus AC is equal to 13 centimeter. So first of all, what we have to do, always do, we have to construct a rough triangle for us, that is ABC. अगर हमने ABC देख लिया तो हमें इसे देख के ये पता चल रहा है BC is given to us, that is 7 centimeter, angle B is 75 degree, और AB और AC का हमें sum दिया हुआ है. So how we can construct when the sum of the sides are given to us? That I am going to start. So first of all, the easiest thing that जो हमें सबसे very first step है, what we have to do, we have to draw the baseline that is given to us. Yes, so that is 7 centimeter in this question. So it is given 7 centimeter. Always we have to draw the baseline, that is BC, that is equal to 7 centimeter. The second thing that is given, angle B, that is equal to 75 degrees. So we have to draw angle B, that is whatever the angle given, ठीक है, base जितना भी given है, that we will draw. After that, whatever the angle is given, so here 75 degree is given to us. So हमें क्या करना है, we have to choose a arc according to our wish, but after choosing the arc, we are not going to change this arc. So first of all, we will put this compass on the B point and ड्रॉ द आर्क. हम एक आर्क बना लेंगे वेयर दिस आर्क विल इंटरसेक्ट द BC. हम यहाँ पे कंपास पुट करेंगे एंड वी विल अगेन पुट मेक अ आर्क दैट विल इंटरसेक्ट द बिगर आर्क, और जो यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है दैट विल मेक अ एंगल 60 डिग्री. ठीक है, तो हमें 60 डिग्री एंगल बनाना भी आ गया. यस, नाउ आफ्टर दैट वी विल पुट ऑन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टू आर्क एंड अगेन इंटरसेक्ट मेक अ आर्क दैट विल इंटरसेक्ट द बिगर आर्क. और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करा है बच्चों, दैट विल इफ वी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, दैट वी विल गेट द 120 डिग्री एंगल. सो बाय साइमल्टेनियसली वी आर गेटिंग टू नो हाउ वी कैन ड्रॉ द 60 डिग्री एंगल एंड 120 डिग्री. अब हम बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, क्योंकि एट दी एंड हमें 75 डिग्री एंगल बनाना है. और हाउ वी कैन ड्रॉ 75 डिग्री एंगल, बिकॉज when 90 plus 60 is equal to 150, when divided by 2 we will get 75 degree. Yes, तो बेसिकली हमें 90 और 60 का हाफ लेना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि 60 का हम ड्रॉ कर चुके हैं. फॉर द 15 डिग्री वी नीड अ 90 डिग्री एंगल. फिर हम 90 और 60 का हाफ ले लेंगे. तो 90 डिग्री हम कैसे करेंगे, 90 डिग्री इज हाफ ऑफ 120 प्लस 160. तो हम 60 डिग्री पे आर्क कर, we are again put the arc, we will make a arc and then 120 degree wala, and then we intersect that arc and we will join this intersecting point to the B, because we don't need this point line, so we will draw it by dotted line. Yes, now to find out the 75 degree, we will again put on the 60 degree. We will make draw, and where the bigger arc will intersect the 90 degree perpendicular, so we are going to cut that arc, जो हमने 60 डिग्री पे बनाया था उसको, और फिर जो 90 डिग्री जो हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल का लाइन सेगमेंट है उस पर हम पुट करेंगे, जहाँ पे बिगर आर्क हमें कट कर रहा है इसको, और उससे हम उस लाइन इसको आर्क को कट करेंगे जो अभी हमने ड्रॉ किया है. एंड दैट दिस पॉइंट, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द हाफ ऑफ द 90 plus 60, and we have now got the 75 degree angle. Yes, so I hope it is very clear how we can draw 75 degree. So now this line segment is suppose x. ठीक है, हमारे पास एक ये एक्स लाइन सेगमेंट एक्स मिल गया है, एक्स लाइन मिल गया है, बी एक्स लाइन मिल गया है. अब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेयर द सम ऑफ द साइड्स इज गिवन. तो व्हेनेवर द सम ऑफ द साइड्स आर गिवन, तो हम क्या करेंगे उसमें,
जो बी एक्स लाइन, जो हमारा लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा आफ्टर ड्राइंग द एंगल, हमें एंगल बनाने के बाद जो मिलेगा हम उसे एक्सटेंड कर लेंगे। और जब हमें सम ऑफ द साइड्स गिवन है तो जितना भी गिवन है, फॉर दिस क्वेश्चन इट इज 13 सेंटीमीटर, फॉर अदर क्वेश्चन इट कुड बी 5 सेंटीमीटर, इट कुड बी 14 सेंटीमीटर, इट कुड बी 10 सेंटीमीटर, जितना भी है हमें उसको मार्क करना है यहाँ पर बी पॉइंट से। और हेयर फॉर दिस इट इज 13 सेंटीमीटर, सो हम 13 सेंटीमीटर के पॉइंट को मार्क कर लेंगे। यस, सो हियर दिस पॉइंट इज till 13 centimeter, so I'm giving this point D. So now I could say BD is equal to 13 centimeter. BD हमारे पास क्या है, सम ऑफ द साइड्स जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है नया टॉपिक, जो हमें सम ऑफ द साइड्स गिवन है, जो 2 साइड्स का सम दिया है, उसका हम एक पूरे लाइन सेगमेंट पे D पॉइंट मार्क कर लेंगे। नाउ वी कैन से दैट BD इज अ 13 सेंटीमीटर। उसके बाद जब हमें जो ये D पॉइंट मिल जाता है, दैट वी विल ज्वाइन विथ, you can give any other name, but that is not A point. We are looking for the A point because we need to draw ABC. अभी तक हमें A point नहीं मिला है, so जब हम इसको मार्क कर लेंगे सम ऑफ द साइड्स के साथ, जो हमें D point मिलेगा, that is BD is equal to now 13 cm. We are going to join with this the second end point of the line segment, that base line segment, and we have joined this. We have now joined CD. Yes, हमने CD को join कर दिया है। Yes, this is the fourth step and the very important step. इसके बाद जो इससे भी important step है, हमें वो क्या करना है, after joining this we will find the perpendicular bisector. हम CD का perpendicular bisector draw करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? वी विल अगेन यूज अ कंपास और मोर देन हाफ जो जिस भी लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है उस पर मोर देन आधे से ज़्यादा बड़ा हम आर्क लेते हैं। वी विल पुट ऑन द सी पॉइंट एंड ऑन द बोथ साइड्स of the given line segment we will draw the arc. Yes, now yes, from the both the points, from C point and D point on the both side of the CD, क्योंकि हमें CD का perpendicular bisector चाहिए। Now we can see here this is the intersecting point of the two arcs and this is the intersecting point of the two arcs। देखो ये वाला आर्क था हमारा और दूसरा ये वाला आर्क था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन दीज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। यस, yes, now we have joined. Now this perpendicular bisector, जब भी perpendicular bisector जो हमने ऑलरेडी सम ऑफ द साइड्स का लाइन सेगमेंट वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द पॉइंट ए, वो होगा हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज ए। यस, हम अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे ए पॉइंट को सी से। नाउ वी हैव ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल दैट वी आर लुकिंग फॉर, जो हमें ABC ट्राइंगल बनाना था व्हेन द सम ऑफ द साइड्स आर गिवन टू अस। नाउ दिस इज कौन सा ये पॉइंट होगा व्हेन वी हैव ज्वाइन दिस D to C एंड वी हैव फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने उसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब BD को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट विल बी द A point, and then after that we will join A point to C and that will be the required triangle. I hope it is clear. So what you have to do, you have to simply pause the video, slowly आप इस वीडियो को देखो because that is really important. One question for when the sum of the sides or the difference of the sides are given to you, one question from the construction will definitely come. That's why it is very important. Yes, I hope it is clear to you. Thank you, students.